Good morning, students. Today I'm here again, your trainer, coach, and mentor. As we were discussing in the last three sessions regarding this Six Sigma Green Belt coaching, as I promised, I will be also discussing about Yellow Belt. But let us continue with the Green Belt, and simultaneously I will be starting the Yellow Belt as well. So for the Green Belt class level, till session 3 we have completed. Today I'll be starting the session 4. So now let us understand in details what is Six Sigma. So first of all, let us understand what Six Sigma is all about. So meaning of Six Sigma. In last three sessions we have tried to introduce the concept to you. Now we will understand which type of questions we are going to get in examination from this basic concepts, right? Because the ultimate goal is that you have to clear the examination. So what is basically Six Sigma? You must have understood that this is related to a process. So here we are trying to minimize the defects in the process. So we can easily identify that Six Sigma is a statistical capability study. So the foremost thing is that we have studied Six Sigma in a defect reduction stages or in a process of reducing the defects. So this is mainly a statistical process of reducing the defect. So how we will reduce the defect? First and foremost thing what we have to do is we have to understand our process capability. For that we need statistics. In the Yellow Belt you will find the first and foremost thing, the content was there. I have discussed in the last session that it was mainly about the introduction to statistics, measures of central tendency, all was there in Yellow Belt classes, right? So now in Green Belt, since you have already done the Yellow Belt classes, so now in Green Belt you know what is mean, what is median, mode, everything you know about all the basic statistics. So let us start with it. So the first thing is that statistical capability studies. So now we understood that here, Six Sigma is a study that has been drawn from the statistical procedure. See, this entire thing is coming from the controlling mechanism. We know that management studies started since after the Industrial Revolution, from the machineries, usage of machinery started, then scientific management came into picture where we studied the scientific concept, the process capabilities. From there only the process capability actually started. If I understood, see, टेलर जी ने FW टेलर, उन्होंने जब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाया था, इसके पहले भी प्रोसेस होता था काम करने का, बट वो प्रोसेस ठीक नहीं था. सो उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट दिया, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज वेरी क्लियर ऑन हाउ टू वर्क ऑन अ प्रोसेस सीक्वेंसली. If I give you an example, the first and foremost implication of scientific management was in Ford Motors, where they reduced the production time of making a car chases from 12.5 hours to just 60 minutes, I suppose, 60 minutes. So it was a drastic change with the implementation of scientific management. तो आप समझ सकते हो कि scientific management also emphasize on the process. So the entire concept revolves around the process. Where we are working actually the capability study. The capability of what? Here we are actually discussing the capability of our process. So entire thing is mainly focused on the process. तो हमारा main concern है process को समझना, right? तो the entire the Six Sigma is drawn mainly. Six Sigma का जो concept introduce हुआ है, the main it came from the statistical capability study. Statistical क्यों बोल रहे हैं? Because we are drawing the inferences, we are collecting the data, we are observing the data and then we are interpreting the data. Statistics का मतलब क्या होता है? Mainly it deals with data collection. आप data को collect कर रहे हो, organize कर रहे हो and you are interpreting the results thereof for forecasting. स्टैटिस्टिक्स का तो मेन पर्पस ही यही है ना, व्हाई वी डू कलेक्ट डेटा. हम कलेक्ट करें डेटा, वी एनालाइज डेटा, व्हाई? बिकॉज वी वांट टू फोरसी अवर फ्यूचर, वी वांट टू फोरकास्ट रिलेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटीज, मैन पावर प्लानिंग, फैसिलिटीज प्लानिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो अब देखो सिक्स सिग्मा का स्टार्टिंग ही होता है आपका स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी स्टडी से. इसका मतलब आपके जो प्रोसेस है, आप जो भी प्रोसेस पे काम कर रहे हो, मे बी यू आर वर्किंग ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप किसी भी काम को कर रहे हो, आपकी कंपनी कोई भी चीज को लेकर ऑपरेट कर रही है. सो इट मस्ट ऑपरेट इन अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस. सो दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस का क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से काम हो रहा है और उसका एक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालना,
ये है हमारे स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी स्टडी। तो ये जो हमारा एंटायर सिक्स सिग्मा है इसी चीज को लेकर फोकस है। सिक्स सिग्मा इज मेनली ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी स्टडीज, ठीक है ना। सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी बहुत बार समझाया कि सिग्मा हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दिस इज सिग्मा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन से दिखाते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। हम लोग ये करते हैं बार बार, हम लोग वी डू दिस इन स्टैटिस्टिक्स, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं ना। सो ग्रीक इज अ अल्फाबेट। सी द सिग्मा, ये जो सिग्मा है ये ग्रीक वर्ड से डिनोट किया है, या ग्रीक अल्फाबेट से, जो इस तरीका से दिखता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं ना इसको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। मीन एवरेजेस जो होता है उससे कितना डिविएट कर रहा है। अगर हमें ऐसे जाना है तो वो डिविएट इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। सो दिस रिप्रेजेंट द डिविएशन, आप किस तरफ जा रहे हो। ये डिविएशन आपके प्रोसेस में, आपके प्रोसेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ कि आपकी डिविएशन कम से कम हो। देखिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपके अंदर ये पक्का हो जाए दैट we are studying about process, we have to reduce the defects and process. Maybe you are implementing Six Sigma or not, but we can just at least work on our process. और यहाँ पर प्रोसेस की बात हो रही है आपकी पढ़ाई के प्रोसेस की, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर स्टडिंग है। तो आप जब पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, आपका प्रोसेस सही होगा, देन यू कैन डेफिनेटली रीच टू अ वेरी हायर स्टैंडर्ड ऑफ योर प्रोफेशन। आप अपने बहुत ऊंचे गोल तक अचीव कर पाओगे। सो लेट्स फोकस ऑन द प्रोसेस। आप अपनी स्टडीज को प्रोसेस करो और मैं यहाँ पर सिक्स सिग्मा का प्रोसेस को डिस्कस करती हूँ। सो सिंस आई हैव डिस्कस अबाउट सिग्मा कि इसका क्या है, ये सिग्मा मतलब ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। सिक्स सिग्मा मतलब सिग्मा के आगे 6 लग गया। सो दैट इज जस्ट 6 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन। हम मान के चल रहे हैं हमारा जो मीन है उससे 6 स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ if a company is producing, maybe if a company is producing 1 million, now 1 million parts per unit, 1 million part a company is producing, then at 6 sigma level they can be have only defects of 3.4. इतने प्रोडक्ट्स में, इतने प्रोडक्शन में they can only have a defects of 3.4 parts per million defects, right? अभी देखिए मैं सिक्स सिग्मा के पहले या सिग्मा लेवल स्टडी कर रही हूँ, सिग्मा लेवल आप लोग को बता रही हूँ। इफ अ कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 2 सिग्मा, अगर एक कंपनी 2 सिग्मा पे ऑपरेट करे, आप देखो उसकी डिफेक्ट्स कितने आएंगे। डिफेक्ट्स वुड बी समवेयर अराउंड 3,08,507 व्हिच इज लार्ज एनफ, सो वी कैन नॉट एक्चुअली बियर दोस कॉस्ट। इतना ज्यादा अगर डिफेक्ट्स आएगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहाँ रह जाएगी। डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कस्टमर टू बी हैप्पी। और इवन आप अगर कस्टमर हैप्पी नहीं है, आपके भी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट हो रहे हैं, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है, तो वेस्टेज कितनी ज्यादा हो रही है। आप देखो at 2 sigma level you are operating at this level, आपके defects would go somewhere around, अगर आप प्रोडक्शन करते हो आप चेक कर लो अपनी क्वांटिटी को, वहाँ पे देखो it is coming around 3 लाख, मतलब लाख में चले जा रहा है अगर आप ऑपरेट कर रहे हो 2 सिग्मा। इसके नीचे की तो कोई बात ही नहीं है। 3 सिग्मा, आप जब 3 सिग्मा स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हो उस टाइम हमारा आ जाता है 66,807। सो सीधा 3 लाख से आपके रिडक्शन हो रहे हैं, डिफेक्ट्स की कितनी हो रही है 66,807 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी रहता। नाउ एट 4 सिग्मा लेवल, आप 4 सिग्मा लेवल पे देखो, आपके 4 सिग्मा लेवल पे आ रहा है ओनली 6,210 DPMO। नाउ एट 5 सिग्मा इज 233 DPMO। 5 सिग्मा तक अगर आप पहुंच गए 233 DPMO, मतलब इस लेवल पे भी आपको प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। At the final, that is once you are entering at 6 sigma level, there can be only 3.4 defects per million opportunities, right? So ये हमारी ज़रूरत है ना। इसके लिए हम लोग फर्दर जैसे स्टडी करते हैं बिजनेस प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करते हैं, मैनेजमेंट का प्रोसेस किस तरीके से इम्प्रूव होगा, डीमैक कैसे इम्प्लीमेंट करना है, PDCA, ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो मैं गो थ्रू करूँगी आगे। तो इसके लिए आप पहले देखो अपने सिक्स सिग्मा का जो मेन फंडा है, जो हम लोग करते हैं, हम लोग का जो मेन कंसर्न है सिक्स सिग्मा को किस तरीके से निकालना है। तो बेसिक इसका जो रिलेशन है नॉर्मली जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन करते थे उस तरीके से ही होगा। सो इट विल गो लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू fx। y इज इक्वल्स टू fx का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड f हमें पता है f का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। तो आप समझ सकते हो y इज माई आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है। तो सिक्स सिग्मा जो मेजर करेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन तो यही है कि आउटपुट
तो पहला कंसंट्रेशन हो गया आउटपुट पे, बट आउटपुट से कंसंट्रेट करने से सिर्फ नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली वर्क ऑन अवर इनपुट। आप इनपुट कैसा दे रहे हो उसको आपको चेक करने की जरूरत है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता है, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बट यहाँ पे गुड़ को कमाना है, गुड़ की मात्रा को कमाना है। दैट मीन्स वी हैव टू अल्टीमेटली मिनिमाइज द रिसोर्स वेस्टेज एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द एंटायर कॉस्ट। तो आप देखो, जब हम सिक्स सिग्मा को स्टडी करते तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कस्टमर सर्विस और द कस्टमर आउटपुट, ये मैंने वाई को लिया, कस्टमर सर्विस या कस्टमर आउटपुट। इसके लिए क्या, दैट इज इक्वल्स टू माय फंक्शन ऑफ इनपुट। ये फंक्शन है हमारा इनपुट का, तो एक्स इनपुट कैन बी माय प्रोडक्ट or my services, my raw material, the type of product is produced is dependent on my raw material, right? तो आप यहाँ जो कंट्रोलिंग करोगे, इसके लिए आपको डिपेंड माने आपको कंट्रोलिंग के डिफरेंट जो टूल्स है उसको यूज करना है। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है विच कैन बी मेजरेबल एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन माई इनपुट, तो ये इनपुट जो है दैट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम माई प्रोसेस लेवल। तो हमें ये दोनों चीज को साइमल्टेनियसली स्टडी करनी है जब हम लोग सिक्स सिग्मा की स्टडीज को कर रहे हैं। देखिए, व्हाट आर दी बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्स सिग्मा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं रिडक्शन इन वेस्टेजेस, रिडक्शन इन डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सिंस वी आर स्टडीइंग द प्रोसेस, आप जब प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो, यू आर रिड्यूसिंग योर डिफेक्ट्स, you are reducing your wastages, enhancing the customer satisfaction, increasing your profitability level, increasing your revenue and thereby increased branding and increased overall आप देख लो profitability and long term tenure आपकी कंपनी का बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंटायर उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस प्रोसेस के होगा। इसके बाद वाले सेशन में मैं आप लोग को बिजनेस प्रोसेस का पूरा डिटेल समझाऊंगी, किस तरीके से डीमैक को हम लोग को यूज करना है। Thank you students, thank you for listening. If you like this video, do subscribe, share and comment on my YouTube channel. Thank you.